Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and enjoying your online lectures. हमारा C3 के लिए इंग्लिश का जो पहला टॉपिक है या चैप्टर है वो है यूनिट नंबर 9 जर्नीज़. This lesson is based on the novel The Time Machine written by H.G. Wells in 1895. Now I am going to talk about the time machine. The complete novel is not given in our syllabus. It is only the final part of that novel that is given. According to Wells, the society or social setup at the time of the time machine, when this novel was written or published, the social setup was very disturbing at that time. There was a class conflict. Rich class, the rich are the poor, and the rich class, the capitalists, they exploit the workers for their benefits. They don't have any care for the lower class. In that social setup, H.G. Wells wrote this novel. According to him, we can't just rely on the passage of time to make society better and more just. As you can see in the second line, you can read that an inventor travels to other civilizations in his time machine. So here time machine is a device in which the inventor travels to other civilization, in which he moves on, he moves forward in future time to get rid of his present problems. So, according to Wells, it is not possible to get rid of your present conditions, present issues, either social or personal, by moving forward, by ignoring them. So, आप किसी भी चीज़ में बैठ के फ्यूचर में मूव कर जाएं और आप ये कहें कि आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो खुद ब खुद ही फ्यूचर में जाके जो है वो उसका कोई सलूशन निकल आए, तो दैट्स इम्पॉसिबल. The traveler in the time machine goes roughly 8 lakh years into the future. But even then, the gap between the social classes has not been decreased. In fact, it is worse than ever. And the Elois live in constant fear of the Morlocks. Elois and Morlocks are the two classes that are mentioned in the Time Machine novel. Elois are the poor people, weak people. They are always in the constant fear of Morlocks, who snub their rights, basic rights. So, through his novel, Wells
argues that we need to deal with our social problems, with our personal problems. We can't just sweep them under the carpet. हम उनको इग्नोर करके फर्दर आगे फ्यूचर में मूव कर जाएं और वो खुद से ही सॉल्व हो जाएं, दैट्स नॉट पॉसिबल. सो उनका प्रॉपर सोल्यूशन ढूंढना होगा हमें बाय प्रॉपरली डीलिंग विद देम. सो ये चीज़ है जो उसने डिस्क्राइब की है अपने इस नॉवेल में. जी बच्चे, लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग. द following text comes from the final part of The Time Machine, a work of science fiction written by H.G. Wells in 1895, in which an inventor travels to other civilizations in his time machine. Civilizations तहजीब को कहेंगे और तहजीबों की तरफ मूव करता है वो टाइम मशीन में बैठ के, ठीक है. At the end of his novel, at the end of his travels, he is propelled far in the future, where he sees the image of a desolate world described in this text. Propelled far, धकेलना. Propelled far, दूर धकेल देना मुस्तकबिल में. Where he sees the image of a desolate world. Desolate word mean वीरान दुनिया, जहाँ पे आपको वीरान दुनिया की तस्वीर नज़र आती है. डिस्क्राइब्ड इन दिस टेक्स्ट, जो कि आपके इस वाले लेसन में बयान की गई है. H.G. Wells also wrote another very famous science fiction story, The War of the Worlds, as well as stories. Wells' words of science fiction are fables. फेबल्स यहाँ पे आप कहानियों को कहेंगे, और फिक्शन आपके पास होती हैं रियलिटी बेस्ड नहीं होती, इमेजिनरी स्टोरीज़ होती हैं. कंटेनिंग सीरियस वार्निंग्स, जो कि बहुत ही संजीदा तरीके से ख़बरदार करती हैं अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ एडवांस्ड साइंस, जदीद साइंस के असरात के बारे में. एंड एलियन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेसेस, एलियन होती हैं जिनको आप जानते नहीं हैं, अननोन है. एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेसेस जो कि ज़मीन पर रहने वाली नहीं हैं. रेसेस नस्लें इन आर एस्टैब्लिश सोसाइटी, जो कि आपकी जिसके असरात जो हैं वो हमारी फिर इस मुनज़्ज़म सोसाइटी पे इन रेसेस के जो हैं और जो हमारी जदीद साइंस है उसके क्या इम्पैक्ट्स हैं उनके बारे में वो ख़बरदार कर रहे हैं. The picture he paints in this text is certainly a chilling one. जो तस्वीर उसने यहाँ पेश की है इस लेसन में वो यकीनन is a chilling one. Chilling one को आप किसको कहेंगे कि जो कि बहुत ही पॉजिटिव नहीं नज़र आ रही है आपको, जो कि बहुत ज़्यादा हौसले को पस्त कर देने वाली है, जो ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, पैसिमिस्टिक है. जी, फर्स्ट पैराग्राफ. द टाइम मशीन. आई स्टॉप्ड एंड सैट अपॉन द टाइम मशीन. यहाँ से बेटे नावल का एग्जैक्ट जो है वो नावल इसका जो फाइनल पार्ट है वो स्टार्ट हो गया. आई स्टॉप्ड एंड सैट अपॉन द टाइम मशीन. मैं रुका, एंड सैट अपॉन द टाइम मशीन, और बैठ गया टाइम मशीन पर. लुकिंग अराउंड, इर्द गिर्द देखते हुए. द स्काई वॉज नो लॉन्गर ब्लू. आसमान अब नीला नहीं था. अहेड, आगे. इट वॉज इंकी डार्क. इंकी डार्क इंतहाई स्याही थी. एंड आउट ऑफ द ब्लैकनेस शोन ब्राइटली एंड स्टेडीली वाइट स्टार्स. और उस अंधेरे में जो हैं वो चमक रहे थे बड़े मुस्तकिल तौर पे. स्टेडीली होता है मुस्तकिल तौर पे.
ये नहीं कि टिमटिमा रहे थे, नहीं, स्टेडली चमक रहे थे मुस्तकिल तौर पर, ब्राइट शोन ब्राइटली, बड़ी आबोताब के साथ चमक रहे थे, चमके, एंड स्टेडली मुस्तकिल तौर पर, वाइट स्टार्स सफ़ेद सितारे। ओवरहेड इट वॉज स्टारलेस एंड अ डीप रेड, आगे क्या था, स्टारलेस, कि आगे जाके क्या था कि बग़ैर सितारों के आसमान था, एंड अ डीप रेड, और गहरा सुर्ख आसमान था, एंड बिहाइंड, और पीछे क्या था, इट वॉज ग्लोइंग स्कारलेट वेयर ले द ह्यूज सन रेड एंड मोशनलेस, और पीछे क्या था हमारे पास, वो जो है वो सुर्ख कलर का, सुर्ख रंग का आसमान था जिस पे सूरज था, रेड एंड मोशनलेस, जो कि रुका हुआ था, साकत था और सुर्ख था। द रॉक्स अबाउट मी वर ऑफ ए हार्श रेडिश कलर, अब जो इर्द गिर्द उसके जो थे पत्थर थे, या पत्थर जो थे वो इंतहाई रेड कलर के, रेड हुए थे, एंड ऑल द ट्रेस ऑफ लाइफ दैट आई कुड सी एट फर्स्ट वाज द इंटेंसली ग्रीन वेजिटेशन, और ज़िंदगी की अगर कोई आसार मुझे नज़र आए सबसे पहले तो वो क्या थे, वो इंतहाई सब्ज़ा था, वेजिटेशन थी, दैट कवर्ड एवरी प्रोजेक्टिंग पॉइंट, जिसने हर उभरी हुई जगह को जो है वो को कवर किया हुआ था या उसको लपेटा हुआ था। इट वॉज द सेम रिच ग्रीन दैट वन कैन सी ऑन प्लांट्स, ये वही सेम उसी तरह का जो है वो हरा रंग था जो कि आपको प्लांट्स पे नज़र आता है, विच ग्रो इन अ परपीचुअल ट्वीलाइट, परपीचुअल होती है बेटा आपके पास हमेशा रहने वाली, ट्वीलाइट होती है मतलब बहुत क्लियर नहीं होता, जैसे आपका दस्की सा होता है, सूरज गुरूब होने का जो टाइम होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा लाइट आपके पास नहीं होती, तो वो वाले टाइम पे आपको विच ग्रो इन आ परपीचुअल ट्वीलाइट, जो कि मुश्किल तौर पर जो हमेशा रहने वाली जो ट्वीलाइट है या दस्की जो है, या इसको आप कहते हैं गोधुली, उसमें जो है वो ग्रो करता है या उगता है। द टाइम मशीन वॉज स्टैंडिंग ऑन द स्लोपिंग बीच, अब जो है टाइम मशीन अब कहाँ पे उसकी खड़ी है, जो साहिल समंदर है ना, ढलता हुआ साहिल समंदर, वहाँ पे खड़ी है। द सी स्ट्रेच टू अ शार्प ब्राइट होराइजन अगेंस्ट द पेल स्काई, अब पीला आसमान उसको नज़र आ रहा है, द सी स्ट्रेच्ड फैला हुआ है, टू अ शार्प ब्राइट होराइजन, जो कि उफक पर फैला हुआ, उफक के नीचे, टू अ शार्प ब्राइट होराइजन अगेंस्ट दी पेल स्काई, पीले आसमान के नीचे जो है वो पीले आसमान के नीचे जो है वो ब्राइट होराइजन होता है कि बहुत ही ज़्यादा ब्राइट जो है, बहुत ज़्यादा वाज़े है वो, दूर तक जो है वो समंदर फैला हुआ है। देयर वर नो वेव्स, वहाँ पे बिल्कुल कोई लहरें नहीं है, फॉर नॉट अ ब्रेथ ऑफ विंड वॉज स्टीयरिंग, अब यहाँ पे क्या है, आप कोई किसी किस्म की आपकी जो स्टीयरिंग यहाँ पे जो है इसका मीनिंग है हलचल मचाना, ठीक है, कोई भी आपको थोड़ी सी भी जो है वो हवा नज़र नहीं आ रही कि जो कि आपकी इन वेव्स में या पानी में या जो सी है उसकी पानी में जो है वो कुछ हलचल मचाए और वहाँ पे वेव्स उभरे। ओनली अ स्लो स्वेल विच रोज फेल लाइक अ जेंटल ब्रीदिंग शोड दैट द सी वॉज स्टिल लिविंग, अब वहाँ पे ना स्लो स्वेल आप कहेंगे जो फूलना या उभरना, ओनली अ स्लो स्वेल विच रोज फेल, सिर्फ थोड़ा सा उभार आता है उसमें जो है समंदर के पानी में, फेल लाइक अ जेंटल ब्रीदिंग, जो कि जेंटल ब्रीदिंग होती है नॉर्मल ब्रीदिंग, जो कि शोड दैट द सी वॉज स्टिल लिविंग, कि वो ये उसमें वो इतना मतलब कह लें कि नॉर्मल वे में चल रहा है, इतना आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है कि वो शो कर रहा है कि जो सी है वो लिविंग है, स्टिल लिविंग है, उसकी ब्रीदिंग चल रही है, नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से लहरें नहीं जा रही और वो बड़े जेंटल वे में बड़े आराम सुकून से जा रही हैं। वेयर द वाटर समटाइम्स ब्रोक वॉज अ थिक incrustation of salt which appeared pink under the blue sky। अब यहाँ पे आपके पास जो है ना उन्होंने फर्दर जो incrustation का मतलब होता है तह, incrustation of salt, कि वहाँ पे आपकी हार्ड लेयर बनी हुई है
सॉल्ट की, वेयर द वाटर समटाइम्स ब्रोक, कि जहाँ पे जाके आपको थोड़ा सा मतलब नज़र आएगा कि पानी जो है वो थोड़ा सा उसमें हलचल आती है, थोड़ा सा वो उसके वो कह लें कि जैसे सेपरेट हो जाती हैं पानी की लहरें। वॉज अ थिक इनक्रस्टेशन ऑफ सॉल्ट, वो कहाँ होती हैं जहाँ पे आपके पास नमक की तह जमी होती है। विच अपीयर्ड पिंक अंडर द ब्लू स्काई, और वहाँ पे जाके जहाँ पे सॉल्ट की तह है वहाँ वाटर क्या अपीयर हो रहा है, पिंकिश आ रहा है वो ब्लू स्काई के अंडर ना। द एयर फोर्स्ड मी टू ब्रीद वेरी फास्ट विच रिमाइंडेड मी ऑफ माई ओनली एक्सपीरियंस ऑफ माउंटेनरिंग। जी बच्चे, यहाँ पे अब क्या है, क्योंकि हवा जो है वो बहुत स्लो चल रही है तो अब उसको क्या है, ब्रीदिंग बहुत ही तेज़ तेज़ सांस लेना पड़ रहा है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एयर को जो है वो अपने अंदर ऑक्सीजन को लेके जा सके। और कहता है कि ये चीज़ मुझे